Good afternoon, students. In the last session, we saw that how to create hyperlink on a web page, right? And we saw linking within the same page also. Now, in today's program, we will be covering different tags. Different tags, they are P, pre, comment, address, and TT. Right, so these are the different tags which we are going to cover in this programs. ये tags के बारे में आपको एग्जाम में 1 मार्क के लिए आ सकता है कि explain the following tags, उसमें p, pre, comment, address इस तरह से आ सकता है. Okay, now let us start with pre tag. Sorry, p tag. Now p stands for paragraph. Okay, so p यहाँ पर whenever you want to create a paragraph, suppose I'm just writing a paragraph here. Say I have this paragraph, right? So यहाँ पर इस paragraph को मुझे display करना है on the web page. So file, save. How to save? You know that very well. Say I'm giving the program name as p.html because mainly p tag we are going to see in this program. Save. Go to documents and I'll just open that. Now, as you can see, I have this paragraph on my screen. Okay. Suppose I want to create one more paragraph here. So what I'll do, I'll copy and paste the paragraph here. Okay, save and refresh. See what has happened. Are there two paragraphs? No. यहाँ पर मैंने कोड में 2 पैराग्राफ्स बनाई है, बट यहाँ पर एक ये टेक्स्ट कैसे रेंडर हो रहा है, एक कंप्लीटली एक ही जगह पर आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, राइट? सो बिकॉज यहाँ पर ये 2 अलग अलग पैराग्राफ है, इस तरह से ब्राउजर उसको रेंडर नहीं कर पा रहा है, डिस्प्ले नहीं कर पा रहा है. सो टू मेक द ब्राउजर अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ पैराग्राफ, we have to make use of p tag. Okay, so p tag open, p tag close. For this, again, p tag and p tag close. Okay, so now these 2 marks as different tables. Now file, save and refresh it. Now you can see the 2 paragraphs, isn't it? Now I would say I want a bigger paragraph. So what I'll do here is I'll remove this p, save it and refresh it. This p we have removed. Okay, so now I want this to be a single paragraph. Okay, now here for ये हमने बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे बड़ी सी पैराग्राफ क्यों बनाई, बिकॉज मुझे आपको यहाँ पर p का एक एट्रीब्यूट समझाना है, दैट इज अलाइन एट्रीब्यूट. ओके, p का सिंगल एट्रीब्यूट है अलाइन एट्रीब्यूट. अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट विच इज बाय डिफॉल्ट. सेव and refresh. See, it is left aligned, isn't it? And next value is right. Now see the difference. Right align of the paragraph. Now it is properly aligned from the right side. See the left side. Okay, so these are the values of align attribute of p tag. Align. Then next one is center. See, the paragraph is center aligned. Okay, and the last one, which is very important, that is justify, which is mostly used. Save and refresh. See, it is aligned properly from both the left and the right side. Okay, so p is for creating the paragraphs, align is the attribute for aligning. ये p paragraph create करने के लिए use होता ही है, but अगर आपको you have just simple text, say thank you. I have a simple text thank you, but I want it to appear on the right side of the screen. Okay, so for that यहाँ पर alignment का और कोई option नहीं है, इसीलिए हम इसको p align equals to right दे सकते हैं. Okay, and p वैसे हम CSS से कर सकते हैं, but CSS is not in your syllabus. So यहाँ पर see. So p का ये जो अलाइन एट्रीब्यूट है बहुत काम करता है. लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाइड टेक्स्ट को आपको प्लेस करना है. सिंपल पैराग्राफ हो या ना हो, 1-2 वर्ड्स या थोड़ा सा भी टेक्स्ट हो, तो भी आप p को यूज करके उसको अलाइन कर सकते हैं. सी फॉर सेंटर, इट विल गिव यू द टेक्स्ट इन सेंटर. ओके, सो आई होप दिस मच इज क्लियर. p tag stands for paragraph tag. It is used for creating paragraphs in HTML. फिर अलाइन एट्रीब्यूट बताना है और उसकी चारों वैल्यूज के बारे में आपको. Okay, so now next is pre tag.
ओके, सो प्री टैग क्या करेगा? एक्चुअली प्री स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट. प्री स्टैंड्स फॉर प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट. प्री फॉर्मेटेड मीन्स पहले से ही फॉर्मेट की हुई टेक्स्ट है. ओके, तो इसका यूज क्या है देखते हैं. प्री, चलो लेट्स डू इट दिस वे. NEHSJC, नेताजी चौक, उल्हासनगर 42104. ओके, इस तरह से हमने ये 4 लाइन लिखा. ये आएगा ऐसे, आउटपुट में आएगा. लेट्स सी, फाइल सेव एंड रिफ्रेश. सी, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ब्रेक डालिए, राइट? तो यहाँ पर हर एक के बाद ब्रेक डालू, बट इंस्टेड ऑफ पुटिंग ब्रेक आई वांट कि मैं जैसे टेक्स्ट टाइप कर रही हूँ नोटपैड में, as it is it should be rendered by the browser. As it is means I have already formatted it. I want the text to appear as it is on the browser. So for that you have to make use of pre tag. Pre means it will tell the browser that it is pre-formatted. Browser has to do nothing with it. It just has to display it as it is. Now see. Okay, one more thing we have to pay attention here, that pre में जो भी आप text लिखोगे that will be in monospace format. Okay, that will be in monospace format. So pre NEHSJC, and the same way it will come. Okay, next, whenever you want, suppose the text to come in a monospace font, what you can do is, प्री नहीं चाहिए मुझे, एज इट इज नहीं चाहिए, बट मोनोस्पेस फॉन्ट को यूज करना है. सो यू कैन मेक यूज ऑफ TT टैग, दैट इज ट्रू टाइप, also called as monospace. Okay, so TT, save and refresh. Okay, so this is just for displaying in true type, that is monospace font, and pre is for displaying the text as it is pre-formatted. ये यहाँ पर देखो इस तरह से, suppose employee number, employee name, यहाँ पर मुझे सपोज कॉलम्स बनाने, सॉरी, एम्प्लॉय नेम, देन से एड्रेस. इस तरह से वर्टिकली मुझे कॉलम्स डिस्प्ले करना है डेटा को. एम्प्लॉय नंबर 1, नेम से ABC, एड्रेस से कल्याण. इस तरह से मुझे डिस्प्ले करना है. फाइल को मैंने सेव किया एंड रिफ्रेश. सी, is it coming in a proper way? No, I want to come as it is. So pre, क्योंकि extra spaces, tab spaces, new line यानी कि enter, ये आप कितना भी इधर enter प्रेस करो नहीं समझ में आने वाला है ब्राउजर को, right? For new line you remember we do that BR tag, use that BR tag, right? सो यहाँ पर ये सारी चीजें समझ में नहीं आती है, बट इफ यू वांट कि द स्पेसेस जो भी दिए हैं या जो भी टैब स्पेसेस मैंने दिए हैं दैट शुड कम एज इट इज, तो यहाँ पर आपको प्री का यूज करना है. प्री, सेव एंड रिफ्रेश. नाउ ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ प्री टैग. दिस वाज जस्ट वन मोर एग्जांपल. आई विल रिमूव इट. सो प्री इज क्लियर, आई होप, एंड TT इज आल्सो क्लियर. नेक्स्ट है कमेंट. ना कमेंट क्या होता है? कमेंट आपको लिखना पड़ता है. सी, यहाँ पर तो आप सिंपल प्रोग्राम्स कर रहे हो, बट जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम करते हो, हर लाइन कोड कुछ कुछ ब्लॉक्स में हमें रेफरेंस के लिए टेक्स्ट लिखना पड़ता है कि ये हमने काम क्यों किया था, या व्हाट इफेक्ट इट हैज कम, या क्या मतलब यू वांट टू स्पेसिफाई समथिंग अबाउट दैट. सो वहां पर आप कमेंट्स लिख सकते हो. सो कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं? अगर आपको याद होगा VB में आपको जो भी लिखना है, से दिस इज ऑनलाइन सेशन ऑफ HTML. ठीक है, ये इस तरह से मैंने लिखा. यहाँ पर VB में हमने यहाँ पर एपोस्ट्रोफी दिया था और कमेंट किया था. कमेंट क्या है कि दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज रिटन फॉर माय रेफरेंस, इट शुड नॉट बी डिस्प्लेड ऑन द आउटपुट. ओके, तो VB में हमने इस तरह से एपोस्ट्रोफी दी थी. यहाँ पर बट HTML में कमेंट टैग यूज होता है. यहाँ पर करंटली मैं जो ब्राउजर यूज कर रही हूँ वो ब्राउजर कमेंट टैग को रेंडर नहीं कर पा रहा है. सो इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम ब्राउजर टू ब्राउजर. कमेंट टैग भी है फॉर डिस्प्लेइंग द कमेंट्स. द अदर वे फॉर डिस्प्लेइंग द कमेंट्स इज you have to give the angle bracket, exclamation mark and 2 hyphens, and at the end close it with 2 hyphens and with the angle. So comments in HTML can appear in this form. Now this is online session of HTML. This will not come in the output. See, it has come or not? No. So if I say remove this,
सी दिस इज ऑनलाइन सेशन ऑफ HTML. सो यहाँ पर आपको ध्यान से एक्सक्लेमेशन मार्क, 2 हाइफन एंड एंड में 2 हाइफन एंड इस तरह से करना है. सेव एंड रिफ्रेश. ओके, सो दिस इज नाउ द कमेंट. कमेंट टैग भी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर कमेंट लिखा था. करंटली ये ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा है. आप अगर घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, कमेंट से करके देखो. अगर आपका ब्राउजर सपोर्ट करता है, वेल एंड गुड. अदरवाइज दिस ऑप्शन इज ओके. सो नेक्स्ट इज लास्ट वन, दैट इज एड्रेस टैग. एड्रेस टैग क्या करता है? सी, एड्रेस टैग इज फॉर एड्रेसिंग. सपोज दिस इज क्रिएटेड बाय NEHSJC टेक्निकल डिपार्टमेंट, इस तरह से. ठीक है, यहाँ पर मुझे एड्रेस किसको करना है? एड्रेस इज फॉर लाइक सिग्नेचर्स और फॉर द ऑथरशिप पर्पस. मतलब किसने ये चीज बनाई है, हाईलाइट करना है उस एलिमेंट को, एड्रेस करना है कि दिस belongs to this person or what, or this company, this organization. तो एड्रेस करने के लिए एड्रेस टैग का इस्तेमाल होता है. सॉरी. सो हाउ टू डू दैट? क्रिएटेड बाय से यहाँ पर मैंने एड्रेस टैग का दिया. आप इफेक्ट देखिए इसका क्या आता है, एड्रेस एंड एड्रेस टैग. ओके, सेव एंड रिफ्रेश. सी, क्रिएटेड बाय NEHSJC टेक्निकल डिपार्टमेंट. किस तरह से आया? यहाँ पर एक ब्रेक दे देती हूँ मैं. आफ्टर दिस TT, क्रिएटेड बाय NEHSJC टेक्निकल. इस ब्राउजर ने किस तरह से, मोस्ट ऑफ द ब्राउजर्स एड्रेस्ड एलिमेंट को इटैलिक्स में प्रेजेंट करते हैं. ओके, सो इटैलिक्स में यहाँ पर ये लेफ्ट या राइट में आप कर सकते हो. NEHSJC एड्रेस करने के लिए, राइट. याद होगा हमने यहाँ पर बॉडी में एक एट्रीब्यूट किया था, दैट वाज BG कलर, राइट. BG कलर से रेड देने से क्या होता है? बैकग्राउंड में रेड कलर अपीयर होता है. अगर यहाँ पर रेड ना देते हुए एनी अदर कलर से येलो, येलो दिया, येलो कलर आया. और एक चीज मैंने आपको सिखाई थी, यू कैन गिव द लाइट कलर ऑल्सो, लाइट येलो, तो लाइट येलो इफेक्ट आपको. नाउ यहाँ पर इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कलर, मैंने आपको ये चीज भी सिखाई थी दैट वी कैन गिव RGB कोड ऑल्सो. BG color equals to RGB. Then in the parenthesis we have to specify the red, green, blue code. Red ranging from 0 to 255, again green 0 to 255 and blue 0 to 255. Suppose मैंने दिया 120, 250, 110. Okay, so a red, green, blue का mixture जितना आपने दिया है will appear on the screen. Okay, see here blue का green ज्यादा है, so greenish color यहाँ पर appear हो रहा है. If I just remove it, see, so this way you can give different background color to your web. और एक तरीका है यहाँ पर, इफ यू डोंट वांट टू स्पेसिफाई दिस RGB के थ्रू ही यू कैन गिव द कलर इन हेक्साडेसिमल, राइट. तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक हैश देना है एंड यू हैव टू स्पेसिफाई द कोड फॉर R, G एंड B इन हेक्साडेसिमल नंबर रेंजिंग फ्रॉम 00 to FF. हेक्साडेसिमल आपने सीखा है किस तरह से होता है, 0 to F होते हैं उसमें सिंबल्स. 0 to 255 नंबर्स तक अगर आप लेके जाओ तो इट विल बी 00 to FF. ओके, सो यहाँ पर रेड के लिए 2 डिजिट में कोड लिखना है, से 12, एंड अगर ग्रीन ज्यादा चाहिए 86 से, एंड ब्लू उससे भी ज्यादा चाहिए से FF. FF मीन्स 255 वैल्यू दिया इसका मैंने यहाँ पर. ओके, फाइल सेव एंड क्लियर है इतना. सी, आई डोंट वांट टू गो फॉर दिस ग्रीन और रेड, तो यहाँ पर complete blue in color, right? So full of blue and no of red and green. This way, if I remove this 00, move kar deti hu, then what color will come? Obviously black color. If I make everything to the highest value, red, green, blue, what will happen? See the white color. Okay, so this way you can specify EG. चलेगा क्या? नहीं, G कोई symbol ही नहीं होता है. So say EE, save and refresh. And go for red का, say clear है इतना. So you can give 3 names. Either you can give the name of the color or the RGB, the values, or the hexadecimal RGB. क्लियर है इतना. कलर जहां पर भी आपको स्पेसिफाई करना है, इन तीनों में से कोई भी मेथड से आप इस कलर को स्पेसिफाई कर सकते हो. सो फॉर नाउ आई जस्ट कीप इट टू ग्रीन. सो दिस वे
I hope this much is clear. Now the next program is of tables. Now let us start with it. नाउ टेबल पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा सीएस पेपर 150 मार्क्स का होगा, राइट? सो 50 मार्क्स में यहाँ पर क्वेश्चन 1 2 एंड 1 2 3 4 40 मार्क्स कवर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा डिफरेंट है. क्वेश्चन नंबर 5 10 मार्क्स का रहेगा एंड इन दैट यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2 प्रोग्राम्स. एनी 2 प्रोग्राम्स. अब एनी 2 प्रोग्राम्स में क्या होता है, ये जो फर्स्ट प्रोग्राम रहता है दैट इज C++, second is also C++, and third one is HTML. Okay, यहाँ पर again C++, and HTML. जैसे आप C++ स्टार्ट करोगे सीखना, इट इज वेरी इजी, बहुत अच्छे से हम करने वाले हैं, नथिंग टू वरी. बट C++ के मुकाबले जो प्रोग्राम्स एग्जाम में आते हैं, HTML इज अ बिट इजियर देन दैट. ओके, सो इजियर देन दैट मतलब दोनों C++ करने के बजाय यहाँ पर आपको क्या रहना चाहिए कि मैं एनी 2 करने हैं एंड दैट टू एनी 2 फ्रॉम ईदर दिस क्वेश्चन 5 और दिस क्वेश्चन 5. मीन्स अगर मुझे HTML अच्छे से आता है तो HTML यहाँ का और यहाँ का, HTML मैंने प्रोग्राम्स अच्छे से किए हैं, तो C++ के मुझे कितने प्रोग्राम्स करने बाकी है, मुझे ये HTML भी आ रहा है, ये वाला HTML प्रोग्राम भी आ रहा है. सो मुझे इन चारों में से बहुत अच्छे से जो प्रोग्राम आ रहा है विदाउट एनी एरर, तो वो एक ही प्रोग्राम, मतलब out of these 4 I have to do any one and I can score this 10 marks easily. So for that यहाँ पर HTML के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें मोस्टली टेबल या लिस्ट के प्रोग्राम होते हैं. मेनी ऑफ द टाइम्स टेबल तो 100% रहेगा ही, यहाँ पर लिस्ट या कुछ बेसिक दूसरा प्रोग्राम आ सकता. ओके, सो एक टेबल स्टार्ट करने से पहले ये बताना इसलिए जरूरी था कि टेबल 100% आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ या यहाँ अपीयर होने वाला है. तो आपको अगर वो टेबल एक बार अच्छे से आ गई, देन C++ का चारों में से कोई भी एक प्रोग्राम आप इजीली करके 10 मार्क्स अपनी कर सकते हो फाइनल. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द टेबल्स इन HTML. Tables in HTML, the table tag defines a table. First of all, आपको पता है टेबल होती क्या है, rows and columns, right? rows and columns का मिक्सचर जो मिला के बनता है टेबल. The table tag defines a table. Inside the table tag, टेबल बनानी कैसे है, टेबल में हमें पता है रोज एंड कॉलम्स होते हैं, तो हम HTML में जब टेबल बनाएंगे तो कौन से टैग का यूज करने वाले हैं, टेबल टैग का यूज करेंगे. टेबल टैग से टेबल बनेगा, बट सिर्फ टेबल टैग से टेबल नहीं बनेगा. टेबल बनाने के लिए वी हैव टू यूज देयर सपोर्टिंग टैग्स, जो कि है TR टैग, TH टैग एंड TD टैग. देखते हैं कैसे. यूज द TR टैग टू डिफाइन द रोज इन अ टेबल. Use the TH tag to define the row or column headings and use the TD tag to define the table cells. कुछ समझ में आया कि टेबल्स हम HTML में बनाने के लिए पहले तो टेबल टैग का यूज करेंगे. ठीक है, टेबल मीन्स ब्राउजर को समझ में आएगा कि मैं टेबल बनाने जा रही हूँ. टेबल बनाने से टेबल HTML में रो वाइज बनाई जाती है. तो जैसे ही रो, पहला रो आप देख रहे हो टेबल का इस तरह से मुझे बनाना है, तो रो बनाने के लिए सबसे पहला टैग जो आपको यूज करना है टेबल के बाद, दैट विल बी TR टैग. TR टैग मींस रो स्टार्ट हुआ, देन विल कम द TH और TD टैग. TH टैग क्या करेगा, TH वहां यूज करोगे जहां पर आपको टेबल्स की हेडिंग्स स्पेसिफाई करनी है, रो हो या कॉलम हो, आगे आएगा, समझ में आ जाएगा आपको. एंड देन यूज द TD टैग टू डिफाइन द टेबल का सेल. टेबल में हेडिंग्स भी होंगी और डेटा भी होगा, तो TD फॉर टेबल डेटा एंड TH फॉर टेबल. Okay, then next is the table tag can also contain a caption tag. टेबल टैग के साथ TR, TH और TD को यूज करके मैं टेबल तो बना लूंगी, बट टेबल का कुछ ना कुछ लेबलिंग, कुछ टाइटल, कुछ कैप्शन रहता है, उसके लिए हम कैप्शन टैग का यूज करेंगे. कैसे क्या आगे प्रोग्राम में परफेक्टली सब क्लियर होने वाला है. सो वन मोर टाइम यहाँ पर हम रीड करते हैं. टेबल, टेबल क्लोज, इट इज अ कंटेनर टैग, सो क्लोजिंग आएगा. टेबल टैग ओपन, टेबल टैग क्लोज डिफाइंस अ टेबल इन HTML. ओके, कैप्शन ओपन, कैप्शन टैग क्लोज डिफाइंस अ कैप्शन फॉर द टाइटल ऑफ द टेबल. ओके, then TR tag close defines the table row within a table. मैंने क्या बोला, टेबल के अंदर रो डिफाइन करने के लिए TR टैग का यूज होता है. then comes TH tag. TH टैग क्या करेगा, TH ओपन TH क्लोज के बीच में डिफाइंस अ टेबल हेडर सेल. कहीं पर भी टेबल में आपको एक हेडिंग
वाला सेल बनाना है, सेल मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, राइट, उस सेल में आपको हेडिंग दिखानी है एक उस टेबल की, तो यू हैव टू राइट मेक यूज ऑफ टीएच टैग। जैसे ही आप टीएच टैग लिखेंगे बाय डिफॉल्ट वो जो सेल में टेक्स्ट आएगी वो बोल्ड आएगी एंड सेंटर्ड आएगी। क्यों? क्योंकि आपने टीएच यानी टेबल हेडिंग टैग का यूज किया है, isn't it? Then is TD. TD means table data. जहां पर आपको टेबल डेटा, सपोज एक टाइम टेबल का मैं ले लेती हूँ, मेरा टेबल टाइम टेबल बता रहा है मंडे टू फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये सब क्या होती है? टेबल हेडिंग्स, राइट? तो टेबल ये सब मंडे टू फ्राइडे हेडिंग्स है, मैं कौन से टैग का इस्तेमाल करूंगी, टीएच या टीडी? टीएच। देन अब for the subjects I can make use of this TD tag because that is the data for the table. ओके और टीडी जैसे ही आप यूज करोगे बाय डिफॉल्ट वो नॉर्मल टेक्स्ट आता है एंड लेफ्ट अलाइंड होता है, टीएच हेडिंग है इसीलिए बोल्ड एंड सेंटर। ओके नाउ जस्ट वन प्रोग्राम एंड इट विल बी पिक्चर परफेक्ट क्लियर इन योर माइंड। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोग्राम। आई हैव स्टार्टेड नोटपैड, से HTML head okay so this much is ready। टाइटल में मैंने लिखा tables in HTML, tables in HTML, body tag। अब यहाँ पर टेबल मुझे बनानी है, ऑफ कोर्स सबसे पहला जो टैग मैंने आपको बताया कौन सा टैग यूज होगा, वो टेबल, which will tell the browser that table is going to be created, that this is a table। okay so table tag open, table tag close के बीच में हमें टेबल लिखना है। ओके चलो सिंपल सा एक टेबल बनाते हैं। सपोज हम जो टेबल बनाने जा रहे हैं वो ये टेबल है। ओके इस तरह का वेब पेज पर हम टेबल बना रहे हैं, राइट? क्या है देखो यहाँ पर टेबल को ऑब्जर्व करो, रोज एंड कॉलम्स एंड सेल्स हैं, राइट? सो दीज आर कॉल्ड रोज, कॉलम्स एंड ये जो मंडे आपको एक बॉक्स में दिखाई दे रहा है दैट इज सेल, जैसे केमिस्ट्री दिखाई दे रहा है। ओके सो इस तरह का टेबल आज हम इसमें बनाना सीखेंगे। अब जैसे मैंने आपको कहा कि टेबल रो वाइज बनाई जाती है। ओके तो टेबल टैग तो मैंने पहले लिख लिया कि टेबल टैग बिकॉज आई एम गोइंग टू क्रिएट अ टेबल। रो बनाने के लिए पहला रो क्या बोल रहा है, MONTUE वेडनेसडे थर्सडे, इस तरह से दिखाई दे रहा है। सो पहला रो हम बनाना स्टार्ट करेंगे, उसके लिए हमें TR टैग का यूज करना पड़ेगा। इट इज अ कंटेनर टैग, तो क्लोजिंग भी आएगा। TR ओपन TR क्लोज के बीच में पहले रो का डेटा आएगा। पहले रो में क्या है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, isn't it? इतना क्लियर है। टेबल के अंदर TR टैग which will define the row of the table। नंबर नहीं आएगा कि रो नंबर 1 रो नंबर 2 or nothing। TR means new row started, okay, and TR close means that row ended। तो TR में मैंने लिखा MONTUE वेडनेसडे एंड थर्सडे। यहाँ पर आप देखोगे कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे बोल्ड और सेंटर में, ये तो चलो जगह कम है, ट्यूसडे से आपको पता चल रहा है कि ये सेंटर में अपीयर हो रहे हैं एंड बोल्ड है। तो सेंटर एंड बोल्ड का हमने कुछ पढ़ा था, याद आ रहा है? कौन सा टैग यूज करने का, कि TH या TD? TH। क्यों? TH डिफाइंस द टेबल का हेडर सेल्स एंड TD डिफाइंस द टेबल का डेटा। तो क्या करूंगी मैं यहाँ पर, MON इसी तरह से डायरेक्ट नहीं लिखा जाएगा, MON के आगे आएगा TH and then MON TH close। what will happen that this is one cell का data, ये TH ना एक सेल बनाता है। okay so TH open close के बीच में जो है that is the content of one cell TH। then this Tuesday is also heading, so of course I will write TH open TH close। next Wednesday TH open and TH close। for Thursday TH open TH close। let's see this much output। so I have created a table with one row till now। okay let us save this file, save, this is my table 1। we will be practicing many programs in tables। I will be sending you tables on WhatsApp for you to practice। save and open with Intermix। ये टेबल है मैम, ये बिल्कुल टेबल है। क्यों टेबल है ये? यहाँ पर टेबल लिखा है, रो लिखा है, बराबर टेबल आई है। सिर्फ यहाँ पर इसका एक एट्रीब्यूट है जो हमने मिस किया। टेबल बाय डिफॉल्ट बॉर्डरलेस टेबल बनाता है। इफ यू वांट द बॉर्डर, स्पेसिफाई द बॉर्डर इक्वल्स टू द वैल्यू इन पिक्सेल्स फॉर द थिकनेस ऑफ द बॉर्डर। क्लियर? सी इज इट टेबल?
सी बोल्ड आया, सेंटर में है, अगर आप इसको यहाँ पर कंटेंट दोगे नीचे अपने आप सेंटर में दिखाई देगा आपको। क्लियर है इतना? ओके चलो नाउ लेट्स मेक द नेक्स्ट रो। उसके लिए हमें क्या करना है देखेंगे, यहाँ पर हम टेबल को बायो केमिस्ट्री इंग्लिश बायो दिखाई दे रहा है, सेकेंड रो का कंटेंट, देन थर्ड रो, देन फोर्थ रो। ओके फॉर नाउ वील डू द सेकेंड रो, बायो केमिस्ट्री इंग्लिश एंड बायो। क्या करना है, कोड में आ गए TR and TR close, right? Coming to क्या था, बायो केमिस्ट्री इंग्लिश बायो। ओके क्या करें, क्या दे यहाँ पर, सेल बन जाएगा क्या इससे, देखते हैं क्या होता है। फाइल सेव रिफ्रेश, गया क्या सेल टेबल के अंदर? नहीं, बिकॉज आपने उसको प्रॉपरली टैग के साथ सेल के अंदर प्लेस नहीं किया। तो TH आएगा या TD आएगा? TD विल कम। ओके TD ओपन, सेव एंड रिफ्रेश। इज इट क्लियर? सी केमिस्ट्री ने जगह बना दी, सो ये सेल भी अपने आप स्ट्रेच हो गया। आप यू कैन सी दैट TH से बोल्ड एंड सेंटर में डेटा। ओके आई होप दिस मच इज क्लियर। इतना अच्छे से आपको समझ में आया कि रो किस तरह से बनेगा ना, सॉरी टेबल किस तरह से बनेगी, रो वाइज बनेगी। नेक्स्ट रो, नेक्स्ट TR। ओके TR ओपन TR क्लोज। व्हाट दिस TR ओपन TR क्लोज इज सिग्निफाइंग दैट दिस इज अ स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ पर्टिकुलर रो। Okay, so let us create the third row, IT physics in the EVS. IT physics in the and EVS. What to write? TH or TD? TH or TD? TD. TD and TD. It is a container tag, so closing. TD close and TD close and TD close. Okay, so file, save, and the third row will be ready in our table. Clear hai? The same way I'm making the fourth row. Okay, so save with the fourth row and then refresh. So this much is clear. Now बाकी बचे यहाँ पर हमें जो दिया है कलर, ये क्या है, येलो कलर दिख रहा है बैकग्राउंड में। किसके बैकग्राउंड में? पूरे वेब पेज के बैकग्राउंड में। तो हमने सीखा है क्या करना है, बॉडी में BG कलर इक्वल्स टू येलो। सेव एंड रिफ्रेश। क्या हुआ, लेट्स सी कोड में हमने क्या लिखा है, बी कलर से होगा क्या, नहीं, BG कलर इक्वल्स टू। ओके बाकी बच्चे टेबल के कलर्स हमें दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उसके लिए क्या करना है, टेबल में देखिए बैकग्राउंड में कौन सा कलर दिखाई दे रहा है, लाइट ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल का एक और एट्रीब्यूट है BG कलर, वही एट्रीब्यूट है देखिए BG कलर। बॉडी में देंगे तो येलो कलर, बॉडी में देंगे तो वो कलर पूरे वेब पेज पर अप्लाई होगा, एंड टेबल में देंगे तो that will be applied inside the whole table. Okay, so let us open our table. See, clear है? और एक चीज है हमने यहाँ पर देख रही है, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बॉर्डर का कलर है ब्लू कलर, बॉर्डर को दिया हुआ है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन एट्रीब्यूट्स, ये देखिए दो तीन एट्रीब्यूट्स करके मैं हर प्रोग्राम में कवर करूंगी। इसके काफी सारे एट्रीब्यूट्स हैं टेबल के जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि टेबल, एक्सप्लेन टेबल टैग इन डिटेल, इस तरह से 4 मार्क में या 3 मार्क में क्वेश्चन आता है, जिसमें टेबल टैग, TR, TH, TD, कैप्शन एंड ऑल द एट्रीब्यूट्स आपको एक्सप्लेन करने होते हैं। Okay, so border color equals to blue will give the blue border color to our table. See now it's black in color, refresh किया blue. समझा सबको इतना? Okay, so this was all about table. Caption tag हमारा करना बाकी है, हम करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। So for now हमने ये वाला टेबल जो है वो हमने क्रिएट किया। So टेबल कैसे क्रिएट होता है, टेबल टैग से बॉर्डर देना पड़ता है फॉर अ बॉर्डर वाला टेबल, अदरवाइज बॉर्डरलेस टेबल है तो यू कैन ओमिट दिस एट्रीब्यूट। TR टैग TR क्लोज, TR टैग TR क्लोज,
means the rows of the table. Okay, then tr के अंदर सेल्स बनाने के लिए जो डेटा दे रहे हैं उन सेल्स के लिए th या td यूज होता है. If it is a heading bold center then th, if it is normal left align then td. Okay, so this was table 1. In the next session, next lecture, we will be doing another tables. There are many tables to practice. बहुत अच्छे से clear हो जाएगा. For now, you can make note of this table in your note. Okay. So see you guys very soon. Bye bye. Take care.